Sir, may I come in? Yes, come in. Good morning, sir. Take the marker, write something on the board. Please sit. Thank you, sir. Tell me about yourself. I am Nishant Pathak. I am pursuing the degree of BTech in Electronics Engineering from Balchan College of Engineering, Sangli. I have worked upon 3 mini projects and 1 major project till now. I have worked for 2 renowned companies as an intern till now, and I am aligned towards my career development, and I am approaching towards your company because I see my bright future over there. Okay. Impressive and monotonous, both at the same time. So you told a lot about engineering. So what, according to you, sums up your engineering life? Actually, engineering has changed my life completely. I've learned the importance of time due to the last moment submissions which I did. I've learned the importance of teamwork due to the projects which I have worked upon with my friends. I've learned to deal with different types of people of different sections of the society due to my friends who belong from different sections of the society from different cities who came over here for pursuing their degree. My engineering life is summed with academics plus thrill. Thrill. So what, according to, were the thrilling experiences that occurred during your engineering life? As you know that every student's first priority was academics till they completed that 12th standard. Same was with me. But when I entered the engineering life, along with the academics, there were many things which summed up to make it a thrill. The things were event management, late night submissions with friends, picnics, treks, everything. These all things added an essence to my engineering life. And while concluding, I can surely say like my engineering life was a thrill itself. Okay. We really got positive response from your side and we hope to give you one. Okay, we will let you know. Have a great day. Thank you, sir. भाई निशांत भाई कैसा गया इंटरव्यू भाई ओ भाई इंटरव्यू कैसे गया एक मिनट रुको पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहाँ अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Next. अनिरुद्ध पाठक. अन्नी अरे अन्नी नहीं, अनिरुद्ध पाठक. हॉस्टल लाइफ है भैया, यहाँ देशपांडे का डेस्पो हो जाता है, पटवर्धन का पट्टो हो जाता है, चौधरी का अरे चलो समझ में आ गया. अन्नी क्या हुआ, उसमें नाम नहीं है? अरे भैया नाम नहीं होता तो ठीक होता। हॉस्टल नंबर 4 अलॉट हुआ है भैया तुमको, H4। इस कॉलेज के सबसे बड़े निकम्मे, नकारा और वो क्या आता है, नालायक. हाँ, नालायक प्रजाति के जानवर है ना, इसी हॉस्टल में पाए जाते हैं। कॉलेज में उन्हें लूजर्स के नाम से पहचाना जाता है। लूजर्स? हाँ भैया, हमारी मान लो बगल वाले काउंटर में हॉस्टल चेंज की अर्जी डाल दो, अगर किस्मत सही हुई तुम्हारी तो हॉस्टल चेंज हो जाएगा,
नहीं तो भैया लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। भैया हमारी धार से ना तिहाड़ चल उठता है। ये हॉस्टल स्कोर क्या चीज़ है? वाह बेटा, लगता है तुम भूखा के मानोगे। तो भैया ठीक है, फिर भागते चले आ जाना। ये काउंटर कहाँ भागे चला जा रहा है। अब आपने देखा ही, हॉस्टल के तो हाल बड़े हैं, तो कॉलेज में क्या होगा? ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। What is a machine? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर, बचपन से चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है सर। ज़्यादा मजा लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलो, मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर, a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? सर, हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों के हिसाब चुटकी में कर लेता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर हम मशीनों से इतने गिरे हुए हैं ना, पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक सब मशीन है। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन। डेफिनेशन क्या है? सर वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में ये सब लिखोगे? ये मशीन है? अप डाउन, अप डाउन। एनीबॉडी एल्स? यस। Sir, machines are any combination of bodies so connected that the leading motions may be constrained, and by which means force and motion may be transmitted or modified, such as a lever about around its fulcrum, or a screw on its nut, or a pulley about its pivot, especially for construction more or less complex, and which may consist of simple mechanical elements or moving parts such as wheels, levers, cams, screws, etc. वाह, क्या बात है। परफेक्ट। प्लीज सिट डाउन। सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। अगर आपको आसान भाषा पसंद हो तो आप आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन करें। सर लेकिन ऐसे किताबी डेफिनेशंस रट के क्या फ़ायदा? आप किताब से ज़्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। सर गेट आउट। आसान भाषा में बाहर जाइए। अरे तुम वापस क्यों आए हो? instruments that record, analyze, summarize, organize, repeat and explain information that are hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, and text that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of the human brains to sensory root of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स बोल गया हूँ सर, ले लो। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? सर थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि लाइफ इज अ रेस, आगे नहीं दौड़ूंगा तो दुनिया कुचल कर आगे निकल जाएगी। पर दोस्त रुको और हाथ अपने दिल पर रखो और बोलो ऑल इज वेल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन। सच है, इस स्टूडेंट लाइफ में घिस घिस के रट्टा मारना पड़ता है। रट्टा मारा नहीं कि मारा, एग्जाम क्रैक करनी पड़ती है, एग्जाम हुई नहीं कि हुई सबमिशन करने पड़ते हैं, और इसी चक्कर में ना जिंदगी घिसी पिटी बन जाती है। और इसी घिटी पिटी जिंदगी को थोड़ा सा तड़का देने के लिए कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें हम दोस्त कहते हैं।
यारों जी भर के जीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा यारों जी भर के जीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा है जुनू सा जीने में है जुनू सा सीने में है जुनू सा जीने में है जुनू ड्यूड, मैंने तेरे बारे में कुछ सुना है। क्या? तुझे पता है क्या? बहुत पता है, पर ये नहीं बोला होगा कि आई वॉज फोर्स्ड। गॉड मैन, मेरी मॉम से कोई बात रखी नहीं जाती। शी इज ड्राइविंग मी क्रेजी मैन। अब 10 दिन पहले मुझे किसी दोस्त के रिश्तेदार के घर ले गई लड़की दिखाने के लिए, नीलू आंटी और बोगे अंकल की बेटी कुक्की। सो मैंने भी डिसाइड कर लिया वहाँ जाऊँगा, चाय पीऊँगा, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी बोल के नो बोल के आ जाऊँगा। पर जैसे मैं चाय की पहली सिप ली, कुक्की ने नो बोल दिया। सो व्हाट? सो व्हाट यार? कम ऑन मैन। यार तो अरेंज मैरिज के लिए क्या रिजेक्ट हो गया? अरे मैंने इंप्रेशन क्रिएट ही नहीं किया तो। आई डोंट वांट टू इम्प्रेस हर यार। नहीं शट अप यार, स्टॉप। और तुझे बताने की क्या जरूरत थी? व्हाट्स रॉन्ग विद दिल यार? एक्चुअली इसे आंटी ने कुछ नहीं बताया। इसका नाम पेत्रा है और इसके नए पेत्रे का नाच सिखा रहे थे। कम ऑन मैन। You know what? We need to have some shots. और shots भी कुक्की के नाम। भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, घर है, दौलत है, शोहरत है, बस एक लड़की की कमी है। तो आओ उसी कमी को पूरी करते हैं। ओ शिट, मैं अपना फोन भूल गया। तुम हॉलीडे पे हो ना? और तुम ठीक कह रही हो। ओके, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? नो। रियली? ऐसा क्यों? जो लड़के मुझे अच्छे लगे वो जिंदगी से कुछ चाहते थे, मैं कुछ और। वैसे तुम्हें किस टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं? व्हाट्स योर टाइप? मेरा कोई टाइप नहीं है। कम ऑन, सबका टाइप होता है। क्या? हाँ, जैसे कि मैं जानता हूँ जिस लड़के को साल में से 3 हफ्ते छुट्टी मिल सकती है वो तुम्हारे टाइप का कभी नहीं हो सकता। वो किसी के भी टाइप का नहीं हो सकता। I mean, वक्त कहाँ है उसके पास? He is a slave. और जो सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचता हो वो भी नहीं।
सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचता हो तो ही इज बोर। और जो पैसों को अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानता हो वो भी नहीं। जैसे कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, तो डोंट जज मी। हे, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ क्या पैसे कमाने से तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है? मैं 8 साल का था जब मेरे डैड गुजर गए और मेरे माँ के लिए सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा कर्ज छोड़ दिया। मैं समझ गया था ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है, एज सिंपल एज दैट। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, मुझे पैसों से खुशी मिलती है। तो फिर तुम उस दिन रोए क्यों? डाइव के बाद कभी चेक मिलने के बाद आंख में आंसू आए हैं? नहीं ना? थिंक अबाउट इट। जिंदगी में इतना कुछ अचीव कर लिया है तो क्या तुम खुश हो? उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, लाइक कुकिंग। यो, दैट्स द प्लान। आई मीन 40 के बाद आई विल रिटायर। तुम्हें कैसे पता तुम 40 तक जिंदा रहोगे? सिंस द डे माय फ्रेंड, पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। कम ऑन। कुछ हो गया है क्या? समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात कर रही हूँ? रुको बताती हूँ। वेट, बताना क्यों, सीधे दिखाती हूँ। हैव अ लुक। काश ये वक्त यही थम जाए। बनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये है कि बनी बनी बनी, अबे क्या है ये? बनी, अदिति क्या तुम ठीक हो? या अबे साले ये कैसे मिला तुझको बड़ी से? भाई यार तू मेरा सरप्राइज खराब कर रहा है। यार कैसा सरप्राइज? इतनी बड़ी बात तूने हमें कैसे नहीं बताई? यार यही तो सरप्राइज था। तुम दोनों को इस ट्रिप पर लाओ और आखिरी रात पर बताओ। मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए में एडमिशन। हाँ यार, मतलब तू सच में जा रहा है? नहीं, एनवलप लेके झक मार रहा हूँ। मतलब तू जा रहा है? हाँ। तो कब निकल रहा है तू? 3 हफ्ते में। तब अपना अपार्टमेंट, दारू का अड्डा सब कैंसिल? रियली अभी क्या दारू का अड्डा चलाते हम? क्या बकवास कर रहा है ये? क्या करेगा ये हमारे बिना वहाँ? 4 साल यूएस में बैठ के पागल हो जाएगा, तू भाग के वापस आ जाएगा।
यार तू समझा ना इसे अदिति। बनी, तुम्हें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कब तक चलेगा ऐसे? अब बड़े हो रहे हो और ये सब बचपना बंद करना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बनी। अभी सबसे पहले मैं तुझे बताना चाहता था, डैड को भी नहीं बताया मैंने अब तक। चल छोड़ यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तू खुश है ना यार? बस में बियर पीते हैं। क्या क्या? डर लग रहा है मुझे। तुम्हें डर भी लगता है? जिंदगी बदल रही है। तो मेरे दोस्त खुश नहीं है ना? पता भी नहीं डैड क्या कहेंगे। अमेरिका बहुत दूर है अकेला हो जाऊंगा वहाँ। और यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन लेकिन तुम उड़ना चाहते हो, तुम दौड़ना चाहते हो, और क्या था वो? गिरना चाहता हूँ। तुम रोज दाल चावल नहीं खा सकते ना? दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। और अमेरिका जाना मुझे मेरे सपनों के करीब लेके जाएगा। जाना ही पड़ेगा नैना। जानती हूँ। मिस करोगी मुझे? बिल्कुल नहीं। तुम कुछ कहने वाली थी ना? यही आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते? क्यों नहीं? रोमियो जूलियट एक्सेप्शन तो हो सकते हैं, रूल थोड़ी ना है। और मैं तो यही सलाह दूंगा, वो बार बार बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं। I really love you. You know, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से कह पाऊंगा, बट आई रियली लव यू। काश मैं उससे कह पाऊँ। एवरी टाइम मैं उसके पास जाता हूँ, कहने की जैसे ही सोचता हूँ कि कह दूँ कुछ उसके साथ। किससे? टीना से। और किससे? चलो फिर से करते हैं, मैं राहुल और तुम टीना। आई लव यू। I love you too. वो भी यही कहेगी ना? तो मैं जाऊँ उसे कह दूँ? राहुल तो माना नहीं, टीना ने बुलाया और वो पहली फुर्सत में निकल गया। लेकिन अंजलि का क्या हुआ? अंजलि को हो गया एक तरफा प्यार। और मेरे यार, ये एक तरफा प्यार अलग ही किस्म की बीमारी है। आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले? इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। कमजोरी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ती। सिर्फ मेरा केस पे, सिर्फ मेरा। मुझे सबा से बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए सबा की ज़रूरत नहीं। हो सकता है इससे कोई बेहतर इश्क। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा ले, डर के साथ। अगर जीत गए तो क्या कहना, और अगर हारे भी तो बाजी मात नहीं। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत
पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा। जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्यार व्यार सब तो ठीक है, लोग डेट चेट पे भी जाते हैं, मस्त घूम फिर के आते हैं, पर आगे क्या? ब्रेकअप। वेल, हर किसी का नहीं होता, पर ये इंजीनियरिंग है मेरे दोस्त। जिंदगी के सबसे ज़्यादा रियलिटी चेक्स ना इन 4 सालों में मिल जाते हैं। और रही बात ब्रेकअप की, वो तो आप खुद ही समझदार है। लीजा, 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 कुत्ती, कमीनी, गुलठा, जन्मजली, कीड़े पड़े तुझे, हैजा खाए, तू जल के राख हो जाए। एक जख्मी औरत के दिल का श्राप लगेगा तुझे, श्राप। श्राप? What's that? Please don't curse me. निकल जा यहाँ से। दोबारा अगर इस मोहल्ले में दिखी तो तेरा मुंह नोच लूंगी। दफा हो जा यहाँ से। चुप, चुप, शू। उधर जा। सदियों से मेरा सपना था है किसी को बोल। अब आगे क्या? अब अंग्रेजी चिड़िया की खातिर देसी दिल मेरा तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। उसकी काली करतूतों ने उसका भांडा फोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, वो दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हमको बिन बताए तुमने। भाई, अब समझ में आ गया, ये प्यार व्यार सब धोखा है। पढ़ लिख लो, मौका है। इसे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मेरे या तेरे बोलने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये यहाँ इंजीनियरिंग करने आया है ना, तो वो कर। यार हमें यहाँ कैंपस में आकर ऐसा लग रहा है कि हम घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मेमोरीज बन रही है, दोस्ती हो रही है। लेकिन यार ऐसी दोस्ती के एंड में जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो इस टाइम को मुड़ के देखने का मन भी नहीं करता, और फिर सिर्फ एक बुरी मेमोरी बन के रह जाती है। हमारी एज ही ऐसी है यार, हम ना आगे क्या होने वाला ये देख ही नहीं पाते। डाउट में पापा से बात कर ले। जैसे कि तू बड़े अपने पापा की सुनता है। फॉलो नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुनता नहीं हो पाता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता मैं 6-6 घंटे तुम्हारी तरह। क्या करूं मैं मीना, बता मुझे क्या करूं? हाँ, कूद जाऊं, भाग जाऊं, लटक जाऊं, वापस भी तो नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि इंजीनियरिंग कर रहे थे, क्या हुआ, कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुई? यार तुझे देखकर ना मीना मुझे शर्म आती है मुझे कि तू कहां से आया और क्या क्या कर रहा है। मेरे पास तो सब कुछ है यार, फिर भी मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा। बाप IRS है मेरा, कैसे बताऊं उसे कि मैं नालायक हूं, मुझे माफ कर दे, मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो रही है। अरे भाई की प्लेसमेंट लग गई। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है,
से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई। अरे राफ्ता राफ्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है।